So विपिन सर क्लास 5 PM +1। मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस है, एक है y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t मीन्स अलॉन्ग y एक्सिस, और दूसरी है x इज इक्वल टू r cos omega t. One of the student asked me a question, sir, there is two simple harmonic motions. One we are studying along y or y dash, and sir, other we are studying on x o x dash, means this we are studying on y o y dash, means this is plus r and this is minus r, and the other we are studying on x o x dash, this is minus r and this is plus r. Correct? What happens when the two S.H.M superposed? What happens when the two S.H.M superposed? Y is equal to r sin omega t, this is number one. X is equal to r cos omega t, this is number two. What happens when the two simple harmonic motion superposed? This question is a very good question, and how we can handle it. Students, squaring and adding first and second, squaring and adding first and second, squaring and adding first and second, then you will get x square plus y square, x square plus y square, r cos omega t square, r sin omega t square. It's going beyond the board. I should write here. Okay, rub it. I write here. Squaring and adding. I can write here. Yes, it's better. X square plus y square, r sin omega t whole square plus cos omega t whole square. X square plus y square, r square is taken out, sin square omega t plus cos square omega t. So x square plus y square equal to r square. Do you know, students,
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर क्या है? एनी गेस? नो गेस? चलो मैं आपको एक आइडिया देता हूं. एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर equal to r square. Do you know what is this? You know, भूल गए आप. This is equation of circle having center h comma k. अब ये x square plus y square equal to r square है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जीरो स्क्वायर y माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. सो जब हम दो सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक अलोंग एक्स एक्सिस दूसरी एक अलोंग एक्स एक्सिस दूसरी अलोंग वाई एक्सिस सुपरपोज करेंगे, तो भाई साहब ये क्या बना देगा? सर्कल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन 0, 0 and radius is r, and this is px, y. P is a locus. P is a locus, right? Okay. P is a locus. So note it down, students. So students, you see that it will execute a circular motion. It's a very simple but very interesting. हमारे पास we have two simple harmonic equations. Y is equal to r sine omega t, and the other is x is equal to r cos omega t. Y is equal to r sine omega t is along y axis, x is equal to r cos omega t. The projection is on x, so x dash axis. So what happens if we superpose the two simple harmonic equations? So we have done nothing. We have squaring and added 1 into x square plus y square r sine omega t whole square plus r cos omega t whole square. तो x square plus y square equal to r square sin square omega t plus cos square omega t, that is 1. So x square plus y square equal to r square. If you see, this is of the form of x minus 0 square y minus 0 square equal to r square. So this is the equation of a circle whose center is at the origin 0, 0, because x minus h square plus y minus k square equal to r square is an equation of circle at center h comma k. So simple, very simple physics, nothing difficult. आप जो भी पढ़ोगे, whatever you learn from me, I will not complicate, but you have to learn with the patience. Don't lose patience, don't skip, right? Now I am going to tell very interesting concept related to this, but a bit interesting, more interesting, right? Hi students, now जो पहले हमने किया उसमें हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस थी. x is equal to r cos omega t, y is equal to r sin omega t. अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम कुछ जनरलाइज करने जा रहे हैं. वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आएगा. हमने टॉपिक बना दिया सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस, और जो रिजल्ट आएगा निकल के, दैट विल बी अ Lissajous figure. Well students, what we are going to do here is we are going to superpose the two simple harmonic motions which will
result us in Lissajous figures. So here we go with the Lissajous figures. तो यहाँ मैं आपको Lissajous figures के conditions बनाता हूँ. If टू साथ साथ आप नोट्स बनाते जाना. If two S.H.M's simple harmonic motions act in perpendicular directions, if two simple harmonic motions act in perpendicular direction, then their resultant motion is in the form of a straight line, okay, और a circle जो अभी अभी हमने सीखा, straight line or a circle or a parabola. Etc. Depending upon the frequency ratio, depending upon the frequency ratio, depending upon the frequency ratio of the two S.H.M. अगर हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, वो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होगा या सर्कल में होगा या पैराबोला होगा, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. साथ में एक और पॉइंट है, एंड इनिशियल phase difference. तो स्टूडेंट्स, अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन परपेंडिकुलरली एक्ट हो रही हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट मोशन है वो या तो इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल है, राइट, या तो इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल है, या पैराबोला है, या स्ट्रेट लाइन है. अब ये किस पे डिपेंड करता है? सर्कल है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है. फ्रीक्वेंसी रेशो ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द इनिशियल फेज डिफरेंस. अभी इनिशियली जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ तो मैंने x इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, आई हैव टेकन द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस. तो उसमें ओमेगा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी था, फेज डिफरेंस इनिशियल 0 था, सुपरपोज किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, सर्कल बन गया.
जरूरी नहीं है कि सर्कल ही बने, अगर उनमें फ्रीक्वेंसी रेशियो कुछ डिफरेंट आ रहा है, फेज डिफरेंस है कुछ इनिशियल, तो इट कैन बी straight line also, it can be parabola also, it can be, depending upon the frequency of the two simple harmonic motions. और इसको मालूम है क्या बोलते हैं, these number resultant paths are called Lissajous figures. These resultant path called what? Lissajous. Lissajous. Lissajous figures. Patience, no skipping, cool mind, make notes. जिसके पास पेशेंस है, कूल माइंड है, वही टॉपर है. ये क्लियर हुआ? नोट इट डाउन. मैं फिर से रिपीट करता हूं. इफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस एक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस acts in perpendicular directions, then their resultant motion is in the form of a straight line or a circle or a parabola, depending upon the frequency ratio of the two simple harmonic motions and initial phase difference. These resultant path is called Lissajous figures. अब मैं आपको मैथमेटिकली कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूं, दो इक्वेशंस लेके सिंपल हार्मोनिक की. मैं रब करता हूं, आप इतने में नोट करो. सो स्टूडेंट्स, कीप योर कॉपी एंड पेन रेडी. आई एम गोइंग टू टेक टू सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस. इसकी फ्रीक्वेंसी तो मैं सेम रखता हूं, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट रखूंगा एंड कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस लेके आऊंगा. राइट? तो मैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कंसीडर टू म्यूचुअली, स्टूडेंट्स मैं कैपिटल में इसलिए लिखता हूं सो दैट आप स्क्रीन से देखते हो तो आपको इजी रहे लिखना, नोट करना. आप मत लिखना, आप तो अपने वैसे ही जैसे ग्रामर का रूल है उसके अकॉर्डिंग. Consider two mutually perpendicular simple harmonic motions. One is x is equal to a1 sin omega t. r1 हमने लिया तो हम r1 ही लेते हैं. शुरू से हम r1 r लेके चल रहे हैं एम्पलीट्यूड. आप a भी लिख सकते हो. और दूसरी हम ले रहे हैं y इक्वल टू r2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई. तो इक्वेशन 1, x अपॉन r1 साइन ओमेगा टी, एक्स अपॉन r1 साइन ओमेगा टी. ये जो सिंबल है, दिस इज अ सिंबल ऑफ इक्वेशन. राइट? मैं साथ साथ बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत सीखा है इधर उधर से, बच्चों से, टीचर से, उनका मैं थैंक यू बोलता हूँ, किताबों से. राइट? तो दूसरा हमें मिलेगा इक्वेशन 2. दिस इज 1, दिस इज 2, y अपॉन r2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. ओके.
इज इट क्लियर? अब हम करने क्या जा रहे हैं स्टूडेंट्स? हम स्क्वायरिंग एंड ऐड करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्क्वायर एंड ऐड. क्लियर? तो general equation of Lissajous figure can be obtained from these two, okay, can be obtained from these two equations 1 and 2, which results in equation 3 and 4. Now students, from equation 3rd and 4th, your first and second, the general equation of Lissajous figure can be obtained x square upon a1 square y square upon a2 square minus 2xy a1 a2 cos phi equal to sin square phi. Students, ये इक्वेशन आपने डिराइव नहीं करनी, नाइदर इट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ओके, ये लिसेजस फिगर बेसिकली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम गिविंग यू. अब इस इक्वेशन से हम वेरियस पार्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि वेरियस लिसेजस फिगर्स हम स्टडी करने जा रहे हैं. वो जो वेरियस लिसेजस फिगर्स हैं वो फाई के ऊपर डिपेंड करेंगे. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस लिसेजस फिगर्स which will be dependent upon phi. Phi 0 is what, phi 90 is what, right? तो phi की वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करेगा 0 पे क्या आता है and so on. तो I'm going to discuss with you some Lissajous figures, right? So note it down, the mathematical part, and I'll be back in the figures.
See students, x square upon a1 square, y square upon a2 square under root 2 xy a1 a2 is nothing but 1 upon 2. So this is the equation of oblique or ellipse. Students, you can write a1 as r1 also, a2 as r2 also. I knowingly introduced a1 also because some students say sir हमने स्कूल में a1 a2 से किया है तो आप a1 a2 लिख सकते हैं, hardly matters, but नीचे लिख दीजिए where a1 a2 are the amplitudes, r1 r2 are the amplitudes. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स के इसमें हमने खाली a1 ही लिखना है या a2 ही लिखना है, हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं. तो ये ओब्लिक एलिप्स हो गया. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब तक मैं फाई इक्वल टू 90 डिग्री पे पहुंचता हूं आप इसको नोट कीजिए, पॉज कीजिए और नोट कीजिए. सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने सेकंड कंडीशंस डालने जा रहा हूं. दैट इज इफ phi is equal to pi upon 2, then it is what? X square upon a1 square y square upon a2 square minus 2xy a1 a2 cos of pi upon 2 sin square pi upon 2. अब ये बन गया x square upon a1 square y square upon a2 square cos 90 0 sin square pi upon 2 that is 90, that is 1. ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. लेट मी मेक दिस सर्कल इक्वेशन. नाउ लुक स्टूडेंट्स, इफ a1 is equal to a2, then this is going to be equation of circle. a1 is equal to a2. This is the equation of circle. Interesting. ये एक कॉन्सेप्ट है. अच्छा, अब आप पूछेंगे सर इफ a1 is not equal to a2 then, तो पता क्या बनेगा ये? इफ a1 is not equal to a2 तो ये एलिप्स बन जाएगा. आप इसको स्केच करो, बनाओ, मैं एलिप्स के पास आ रहा हूं. सो स्टूडेंट्स, इफ a1 is not equal to a2 तो what happens? This is going to be an ellipse. This is going to be an ellipse. So this is another Lissajous figure you get. आप बोलेंगे सर ये क्या सिंपल सी चीज़ें बन गई हैं सारी की सारी. यस स्टूडेंट्स, नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज डिफिकल्ट. यू नो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली व्हाट हैपन्स, we lose patience, then we don't gain. Learning is meditation. अब मैं भी थोड़ा इरिटेट हो गया बनाते बनाते ना इसको. मैंने बोला यार इसको छोड़ देते हैं, बच्चों को बोल देते हैं आप खुद कर लेना, पाई बाय 4 क्या है, 3 पाई बाय 4 क्या है. फिर मैंने बोला नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड विद द स्टूडेंट्स. We have to keep our nerves cool. Patience, 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 patience. धैर्य भी धन है.
patience is also money. Note it down. I'm coming to the another Lissajous figure. Now, if phi is equal to 3 pi by 4, in this equation, what we are going to have, x square upon a1 square, y square upon a2 square, minus 2xy a1 a2 cos of 3 pi by 4 sine 3 pi by 4 square. X square upon a1 square, y square upon a2 square. What is cos 3 pi by 4? That is pi minus pi by 4. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव. तो ये बन जाएगा 2xy a1 a2 cos 3 pi by 4 को हम लिख सकते हैं pi minus pi by 4 and sine square pi minus pi by 4. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, ये आ जाएगा cos पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस cos पाई बाय 4 इज जो हमने केस किया है 1/√2, तो ये बन जाएगा √2 x y a1 a2 और साइन पाई बाय माइनस पाई 4, ये भी साइन पाई बाय 4 1/√2, तो √2 साइन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव 1/√2 स्क्वायर दैट इज 2. तो जो हमने ऊपर एक केस किया था, फर्स्ट ही किया था रादर, जिसमें पाई बाय 4 लिया था हमने, तो अब इसमें क्या आ रहा है, फ़र्क क्या है इसमें, उसमें 3 पाई बाय 4 में एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस √2xy a1 a2 इक्वल टू हाफ बनेगा. तो ये भी एलिप्सी, बट ये उसके ऑपोजिट में, मीन्स ओब्लिक एलिप्स होगा, लेकिन इसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा. मैं बना के दिखा रहा हूँ, इतने में आप इसको नोट कीजिए मैथमेटिकली, आई एम मेकिंग इट. तो स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी एन ओब्लिक ellipse. This is going to be an oblique ellipse. Okay, clear? This is an oblique. Note it down. एक बार मैं फिर से बोल दूं स्टूडेंट्स, यू कैन राइट a1 और r1, बट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज r1 और a1, राइट. एंड स्टूडेंट्स, ये जो 3 पाई बाय 4 है, ये पाई बाय 4 के अपोजिट चला गया, बट शेप एलिप्सी है, ओब्लिक ही है. अब मैं लास्ट केस करता हूँ. Now students, I am going to put phi equal to pi. If phi is equal to pi, तो क्या होगा, what happens, x square upon a1 square
y square upon a2 square minus 2xy a1 a2 cos of pi sine square pi x square upon a1 square plus y square upon a2 square. What is cos pi? That is minus 1. Minus minus plus 2xy upon a1 a2. Sine square pi is minus 1 square. So what do you find? Cos pi is 0. अरे sine square pi is 0 भैया, not minus. तो ये बन गया equation of what, you know, if we put this is as pi and what do you get, students, here? Cos pi is minus 1 and we get x. No down please, no down, no down, no down, no down. अच्छे से note कीजिए इसको. Quick. Hope you have noted down. Now what is this going to be, students? This is going to be x upon a1 y upon a2 whole square equal to 0. So this implies x upon a1 plus y upon a2 equal to 0. So this is again an equation of straight line, but it will be like this. How? इसका स्लोप देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ y is equal to minus a2 upon a1 into x. तो ये जो स्लोप है, ओके, ये क्या बन गई? ऑब्ट्यूज. तो दिस इज इट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बट हैविंग एन obtuse slope. So this is what a straight line, students, straight line. One more Lissajous figure you have got, students. बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं सर ये पढ़नी है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हो पढ़ भी सकते हो, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, बट मैंने नहीं छोड़ना, मैंने तो करवाना है. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत होती है, कुछ को नहीं होती है. क्यों ना बता दिया जाए, क्या हर्ज है. प्ले लिस्ट में पड़ी रहेगी यार, जिसको ज़रूरत है कर ले, नहीं तो इग्नोर कर दे. आइटम फुल कर दी मैंने, नोट कर लो इसको. मैं रब करता हूं, फिर इसको देखता हूं कुछ और अगर इसमें बताने का है. स्टूडेंट्स, अगर हम फ्रीक्वेंसी रेशियो ले लें, ओमेगा 1 इज टू ओमेगा 2 इज टू 2 इज टू 1, मालूम है इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेव. कई लोग ऑक्टेव को 8 से कंफ्यूज कर लेते हैं. आपने कंफ्यूज नहीं करना ऑक्टेव को 8 से. तो 2 इज टू 1. तो अब हमारे पास दो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं. एक तो है x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1 t फाई. x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1 t प्लस फाई. और दूसरी है हमारे पास y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t. Now see students,
कुछ और भी मुझे लगा आपसे डिस्कस करूं। अगर फाई का वैल्यू 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, तो ये फिगर ऑफ 8 बनाएगा, फिगर ऑफ 8. If the value of phi is 0, pi, 2 pi, then it's a figure of 8. Means frequencies in the ratio 2:1. Even A2 is constant, then it will be a figure of 8. Note it down please. मैं कुछ और भी एंगल लेने जा रहा हूँ, डोंट वरी, याद करना है, बस कर लेना, कई बार ये MCQs में आ जाते हैं. If the value of phi is pi by 4, 3 pi by 4, pi by 4, 3 pi by 4, then it is of the form of double parabola. Double पैराबोला. अगर फाई का वैल्यू पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 हो तो ये डबल पैराबोला फॉर्म करेगा. नोट इट डाउन. इफ द वैल्यू ऑफ फाई इज पाई अपॉन 2, frequency is in the ratio of 2:1, then it is simply a parabola. Simply it is a parabola. मैं ना स्टूडेंट्स एक फ्रेम में एक ही चीज लिख रहा हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूं कि यू हैव टू स्टडी ऑन स्क्रीन. ठीक है ना, आप रिवाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो फिर वापस उसी में चले जाएंगे, राइट. तो ये एक एडवांटेज है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया मैंने, राइट. अब ऑफलाइन होता तो फिर आपको वो जो पुराने वाला रब वो ना होता, अंटिल अनलेस आई डोंट हैव ए स्मार्ट बोर्ड, राइट. तो दिस इज फाई इक्वल टू पाई अपॉन 2. नोट कर लो. Well students, if the value of phi is 5 pi by 4, 7 pi by 4, it is again a double parabola, but इसका जो orientations है वो previous जब हमने pi by 4 और 3 pi by 4 लिया था तो उसके opposite आ गया, right. Make it. मैं फिर कह रहा हूं, जिन स्टूडेंट को ये नहीं चाहिए दे कैन लिव इट, दे कैन इग्नोर इट, बट मुझे ये डालना ही डालना है, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट दी कॉन्सेप्ट्स जो भी पॉसिबल रिलेटेड, क्योंकि नीट जेई में आ जाते हैं यार लिसाजस फिगर पे कुछ ना कुछ. नाउ स्टूडेंट्स, इफ फाई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, बस ये फाइनल है. फाई इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2, देन दिस विल बी पैराबोला. दिस विल बी अ पैराबोला, करेक्ट. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ जो हमने स्टडी किए हैं, एंड आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मोर और लेस. तो स्टूडेंट्स, with this lecture we come to an end of the basic concepts on simple harmonic motion, and मुझे मालूम है ये थोड़ा चैप्टर मतलब है, बट करना तो है. जो चीज़ हमें
मन की नहीं होती तो ज़्यादा मन से करनी चाहिए, राइट। ज़िंदगी में जब हमने कुछ बड़ा करना है तो बहुत चैलेंजेस होते हैं एंड मुश्किलें भी आती हैं और पेशेंस का हमेशा टेस्ट रहता है। स्टूडेंट्स, मेरी एक दो ऐप्स हैं। एक ऐप तो है topranker.com, दूसरी ऐप स्कूल ऑफ साइंस बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। उसमें हम लोग बोर्ड्स को फोकस करेंगे। यूट्यूब तो चलता जाएगा, यूट्यूब में तो सब कुछ चलता जाएगा, राइट। तो मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, स्कूल ऑफ साइंस पे। टॉप रैंकर ऑलरेडी फंक्शनिंग है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन है, क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, topranker.com ये डालें तो एक ऐप खुलेगी, उसको आप रजिस्टर करके साइन इन कर लीजिए, डाउनलोड करके साइन इन कर लीजिए, मतलब रजिस्टर कर लीजिए। फिर उसमें कुछ 2-3 टेस्ट हैं फ्री, उसको अटेम्प्ट करके देखो। अगर अच्छा लगता है ले लो यार इसको, दिक्कत आती है तो आप 9814121996 पे आप मुझे व्हाट्सएप करके प्रॉब्लम पूछ सकते हो। सो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल का पर्पज़ है गांव-गांव तक जाने का, उन सब स्टूडेंट्स को अप्रोच करने का जो भारत के दूर दूर गांव में हैं। एंड विपिन शर्मा सर फिजिक्स चैनल aim and objective is to reach everywhere in the remote village areas where accessibility of tuitions are very difficult, and it is also meant for those students who are willing to do the self study at home. तो डेली 5 PM आपको लेक्चर मिलेगा ही मिलेगा, कोशिश है मेरी, राइट। कभी मैं प्रॉमिस करूँगा तो वो फिर ज़रूरी नहीं है वो फुलफिल हो जाए, कोशिश है। I'll try my best. I won't promise, but I'll try my best. The students, this is your channel. If you like it, do tell others. If you have any suggestion, WhatsApp 9814121996. For multiple choice questions, topranker.com available on the Google Play Store. Thank you all. Happy learning physics. सुनो, it is your channel. सभी बच्चों को बताओ यार, प्लीज, जो भी आपको जानते हैं सब्सक्राइब करो। कुछ चेंजेस चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है। कमेंट्स में तो मैं लाइक कर दूंगा। मैं कभी कमेंट्स में मतलब आई डोंट गो विद द आर्गुमेंट्स, यू नो। कुछ लोग अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग बुरा लिखते हैं। कहीं से भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं विल डेफिनेटली, ठीक है। अब एक जो भी आपके सामने है, ठीक है, राइट। कूल, काम, विद पेशेंस, राइट। हैप्पी लर्निंग फिजिक्स। सी यू टुमारो 5 PM. बाय बाय विद न्यू चैप्टर। अगर आपको कोई अपनी पसंद का चैप्टर चाहिए वो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं स्टार्ट कर दूंगा। बट मेरी कोशिश है मैं वेव्स में जाऊं, राइट। फिर भी आप चाहो तो बोल सकते हो, बिकॉज विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय। सभी फ्रेंड्स को बोल दो यार, आप ही का चैनल है, बोल दो ना यार अभी।